Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss the third step of extraction. As you all know कि we have discussed the two steps of the extraction of the metal. That second step is based upon the activity of the low, medium and the high reactive metal we have discussed. Now we are going to the third step in which we get the ultra pure metal, that is known as refining of metals. What do you mean by refining? है ना? This refining can be done in a number of ways, but in up to the 10th standard, here I am going to discuss the only one type of refining, that is known as electro refining. Electro refining. So with the help of refining or electro refining, what we get the ultra pure metal, 100% प्योर मेटल. जो हमारी सेकंड स्टेप में विद दैट समवेयर वी लेफ्ट विद सम परसेंटेज ऑफ द इम्प्योरिटीज इन द थर्ड स्टेप टू गेट द अल्ट्रा प्योर मेटल. In the last we do the refining of that. So with the help of this we get the pure metal. Get. So here I am going to discuss electro refining, and electro refining maybe here I am going to discuss a special case of copper as an example कि कॉपर की रिफाइनिंग हो तो हम कैसे करेंगे, और दूसरे मेटल्स पर भी इन द सेम वे वी कैन अप्लाई दैट. सो इसमें कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो फर्स्ट आई ड्रॉ एन डायग्राम, उससे हम समझेंगे. ये हम अपना एक वेसल लेंगे जिसमें हमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी है. इनटू दैट वी टेक 2 रोड, one is anode, another is cathode. Anode is still somewhere thick, थोड़ी सी थिक होगी एनोड, और जो हमारी एनोड होगी वो थोड़ी सी थिन होगी. ठीक है, दिस इज एनोड, एनोड, and this is cathode. Okay, so this anode is made up of impure metal, impure, and cathode is made up of pure metal. And here we are going to connect it with the help of battery. Okay, this is positive one, this is negative one. As you all know, at anode oxidation will take place always, and at cathode reduction will take place. So इस तरह का सेटअप हमें हर टाइप की मेटल जिसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम कर सकते हैं उसके लिए लेना है. We take a vessel, into that we take 2 rod. One is anode, that is thick or impure, and it is thin and pure. It is thin and it is thick. अब हमें उसी मेटल का कोई सॉल्ट लेना है एज ए इलेक्ट्रोलाइट जिसका हमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है. सो हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉपर. सो हेयर वी टेक कॉपर इम्प्योर रोड एंड कॉपर प्योर मेटल रोड, एंड द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कॉपर हेयर वी टेक ए सोल्ट ऑफ मेटल जिसकी हमें रिफाइनिंग करनी है. तो मैं कॉपर की कर रही हूं, तो आई टेक द सॉल्ट ऑफ कॉपर, दैट इज कॉपर सल्फेट. ए सॉल्ट ऑफ मेटल जिसकी आपको रिफाइनिंग कर रही है, बट दैट मेटल सॉल्ट मस्ट बी एसिडिफाइड. द स्मॉल अमाउंट ऑफ acid you will add so that salt can break down into the ions easily, so it undergo the process of refining. Okay, so here we take aqueous copper sulfate. Here we take copper sulfate. This copper get break down into the copper plus 2 ions, and this sulfate can break down into the SO4 2 negative ions. This is the aqueous solution of the copper salt, that is copper sulfate. ये हमारा सेटअप है. तो ये हमने जो इम्प्योर रोड ली है थर्ड स्टेप में
हमें जिस मेटल की रिफाइनिंग करनी है, जिस चीज की रिफाइनिंग करनी है, वी टेक दैट इन द फॉर्म ऑफ एनोड, थिक एनोड रोड। ठीक है, तो जैसे ही आप करंट पास करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे, द करंट विल फ्लो, करंट फ्लो करेगा। तो यू नो दैट ये जो एनोड है ना, एनोड में क्या है, मेटल विद इम्प्योरिटीज, है ना, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है मेटल के अंदर, तभी तो ये इम्प्योर है जिसकी हमें रिफाइनिंग करनी है। सो इसका क्या होना शुरू हो जाएगा, ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी, इसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा तो इस एनोड रोड से कॉपर +2 आयंस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे एंड द इम्प्योरिटीज यहां नीचे मड के रूप में सेटल डाउन हो जाएगी, दैट इज नोन एज एनोड मड। बच्चों, एज वी पास द करंट, जैसे ही हम करंट को पास करेंगे, द ऑक्सीडेशन ऑफ द इम्प्योर कॉपर गेट स्टार्ट, शुरू हो जाएगा। द कॉपर आयन कम्स इन द इलेक्ट्रोलाइट and the impurities get settled down below the anode in the form of anode mud. impurity नीचे settle down हो चुकी हैं and ions electrolyte में आ गए हैं। तो जितने number of ions anode से electrolyte में आएंगे, उसी नंबर में इक्वल नंबर ऑफ आयन कॉपर +2 जो कि इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, वो कॉपर +2 आयन रिड्यूस होकर किस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड पर, एंड वी गेट द प्योर मेटल। तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, जैसे ही हमने करंट पास किया, एनोड रोड का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया। तो एट एनोड पर हो क्या रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, जो इम्प्योर रोड थी, कॉपर जो ये थी थिक इम्प्योर थी, इट विल ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर +2 विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और impurity they get settled down at the bottom of beaker or below the anode, that is in the form of anode mud। ठीक है, अब जो एनोड से आयन इलेक्ट्रोलाइट में आ गए, उतने इक्वल नंबर ऑफ आयंस जितने हमारे इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट थे, वो कॉपर +2 आयन कैथोड पर क्या होंगे, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। जो कॉपर +2 आयंस हमारे इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट हैं, ये कॉपर +2 आयंस जो ऑक्सीडेशन हुआ था उसका कॉपर का एनोड के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड दे गेट रिड्यूस्ड इनटू द कॉपर। सो दिस प्योर कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन व्हाट, कैथोड, एंड अल्टीमेटली वी गेट द प्योर, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है, रिफाइन करना, टू गेट द प्योर मेटल। तो हमने उस प्योर इम्प्योर मेटल को रोड के रूप में लिया, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस आए, उतने ही इलेक्ट्रोलाइट से आयन किस पर डिपॉजिट हो गए, रिड्यूस होकर हमारे कैथोड पर। तो इम्प्योर मेटल रिड्यूस होकर, पहले ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा है और फिर रिड्यूस होकर प्योर मेटल। सो वी गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मेटल ऑन द कैथोड। सो हियर द क्वेश्चन कम अराइजेस की एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है एक, एनोड, व्हाट वी टेक एनोड, द मेटल इम्प्योर रोड दैट इज थिक, what we take as a cathode, that is pure metal rod, thin. What we take electrolyte, we take a salt of metal in the form of acidified. We generally add the small drops of the acid into the electrolyte so it get easily ionized or undergo the process of this electrolysis like electrorefining. And at anode, oxidation will take place. In the same way, cathode reduction will take place and we get the pure metal at the cathode. So with this, students, we end the topic of extraction up to the third step, refining. We are left only with a important type of reaction, thermite reaction. ठीक है, we will discuss that type of reaction in the next video. So till that, up to this video we have discussed the complete extraction of metal. In the first we have discussed concentration of ore, second based upon the activity we have discussed हाई रिएक्टिव मेटल, तो हमें अल्टीमेटली वहीं पर प्योर मिल जाते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, बट ऑफ लो एंड मीडियम वी डू द अल्टीमेट रिफाइनिंग ऑफ मेटल एंड वी गेट द प्योर मेटल एट द रोड ऑफ कैथोड और द एट द कैथोड रोड। ओके, आई होप
you are enjoying, you are watching all the videos, and please clear your concept, read from your books also, and if you like the videos, please press the like button and please comment me in the comment box. Thank you very much, students.